میں خان صاحب کے لیے یہ محبت ہے جو میں خان کا سپاہی ہوں اور خان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، اس وجہ سے ہم بھی اس کے لیے کھڑے ہیں. ہم آندھی سے، ہم طوفان سے ہم لڑیں گے اور گلو پٹوں سے یہ ڈنڈا دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم ہمارا خون بھی اس کے لیے حاضر ہے اور جو ہے اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے اور اپنے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کو بچانا چاہیے. 20 سال سے ہمیں لوٹ رہے ہیں، مکھی کی طرح ہمارا خون پی رہے ہیں، ہمارے بچوں کا پی رہے ہیں. آج وہ حال ہے، یقین کرو ایک ٹائم کا ہمارے پاس آٹا نہیں ہے، ہم کیا کھائیں گے؟ مجھے بتا. صاحب کی سیکورٹی میں بنی گالا میں 8.5 ماہ میں نے گزارے ہیں. میری ماں نے بھیجا تھا جاؤ بیٹا ٹر جاؤ، خان صاحب کی حفاظت کرنا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا. اگر آپ کی ہے ہمت تو بھیجو گلو پٹوں کو. کیسے گرفتار کرتے ہو؟ ہماری لاشوں سے گزر کے جانا پڑے گا آپ لوگوں کو. ٹھنڈی ٹھنڈی لسی بلاول بھٹو کھسی، اس کا مطلب ہی یہی ہے. زنانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زنانہ ہے، زنانہ ہاں، مردانہ طاقت اس میں نہیں ہے، وہ زنانی طاقت ہے اس میں. السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فخر عباس. آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، ابھی میں زمان پارک کے باہر موجود ہوں. جیسا کہ آج 7واں دن رات ہو چکی ہے، لیکن میں ابھی ایک کیمپ میں موجود ہوں. میرے ساتھ 2 عمران خان کے ٹائیگر موجود ہیں جو کہ بنی گالا میں 7-8 مہینے ڈیوٹی دیتے رہے ہیں اور خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. میرے ساتھ موجود ہے ساجد چانڈی اور ساجد حسین. ساجد حسین ڈی جی خان سے ہے اور ساجد چانڈیو صاحب جو ہیں اسپیشل کراچی سے ہیں اور ابھی زمان پارک میں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. یہاں پہ خان صاحب کی محبت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہے. یا ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کتنی محبت کرتے ہیں، کیا جذبہ ہے ان کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام محمد ساجد چانڈیو ہے. میرا کراچی سے تعلق ہے، نیو کراچی این 253 سے، اور میں نکلا تھا حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے، اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف جہاد کے لیے نکلا تھا. آج میں الحمدللہ خان صاحب کی سیکورٹی میں بنی گالا میں 8.5 ماہ میں نے گزارے ہیں. میری ماں نے بھیجا تھا جاؤ بیٹا ٹر جاؤ، خان صاحب کی حفاظت کرنا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا. اسی جذبے کے ساتھ میں بنی گالا میں رہا ہوں. اب جو ہمارے سینئر قیادت ہے وہاں پر جو لیڈرشپ تھی انہوں نے میسج دیا، جو بنی گالی کی ٹیم ہے وہ خصوصی زمان پارک پہنچے اور میری خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. خان صاحب سے میں نے آٹوگراف بھی لی ہے. مجھے اس آٹوگراف کی قیمت 27 لاکھ روپے لگی ہے. مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی. میری اتنی بڑی الحمدللہ کراچی میں مجھے ہزاروں لوگ آتے ہیں میرے گھر پہ. اسی آٹوگراف کی شرٹیں میں نے TCS کرا گھر بھجوائی. ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے. مجھے اللہ پاک نے عزت دی ہے، لیکن مجھے لیڈر کی حفاظت کرنی ہے. جس مقصد کے لیے میں آیا تھا خان صاحب کی حفاظت کے لیے. یہ جو امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہے مسلط ہو کے، یہ چور جو ڈاکو بیٹھے ہیں مسلط ہو کے، ان کے اوپر ہمیں ہرگز بھروسہ نہیں ہے. کبھی کون سی سازش کرتے ہیں، کبھی کون سی سازش کرتے ہیں. اسی سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے زمان پارک میں. آندھی طوفان بارش میں ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، چاہے اندھیری آ جائے بارش آ جائے. ہمارے حوصلے جذبے بلند ہیں. جو بھی یہاں پر آئے گا گلو بٹ رانا سناب لوگوں کو میں پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ کی ہے ہمت تو بھیجو گلو بٹوں کو. کیسے گرفتار کرتے ہو؟ ہماری لاشوں سے گزر کے جانا پڑے گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، جیسا کہ صوبہ سندھ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ بلاول زرداری، آصف زرداری نے اتنے سالوں حکومت کی، ان کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں، کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی میں سب سے پہلے تو میں زرداری بیماری کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سندھ کی بیماری زرداری کو. اور بلاول بھٹو نہیں ہے، بلاول کھسی ہے. وہ وزیر خارجہ کے لائق ہی نہیں ہے. ان زبردستی مسلط کیوں کیا گیا ہے؟ بلاول کھسی کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بلاول ٹھنڈی ٹھنڈی لسی بلاول بھٹو کھسی، اس کا مطلب ہی یہی ہے. زنانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زنانہ ہے، زنانہ ہاں، مردانہ طاقت اس میں نہیں ہے، وہ زنانی طاقت ہے اس میں. لیکن الحمدللہ ہم خان کے سپاہی ہیں اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے. کراچی میں جو ان لوگوں نے جو کیا دھاندلی، کراچی میں بلادی الیکشن ہوا، ٹھپے بازی ہوئی. میری UC کے اندر این 253 کے اندر میری UC کے اندر ٹھپے بازی ہوئی. اندر پولنگ اسٹیشن اندر گھس کے پیپلز پارٹی کے گنڈوں نے جا کے ٹھپے لگائے. پولیس والے ساتھ میں مل کے کھڑے رہے. ویڈیو موجود ہے، سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی رہی. ان کو کہتے ہیں مراد نامراد آ گیا. جو وزیر اعلیٰ ہے نا وہاں کا سندھ کا، مراد علی شاہ کہتے تو ہم اس کو کہتے ہیں نامراد. نامراد سے آگے میڈیا کے سامنے ہم نے پرامن الیکشن کرائے. اور شرم کرو، تمہارا الیکشن کمیشن بھی تم نے اپنے گلو بٹ بھیج دیے جو آپ لوگوں نے وردیاں پہنا کے ادھر پولنگ اسٹیشن میں بٹھائے. اچھا، آپ یہاں پہ 7 دن ہو چکے ہیں، مزید کتنے دن یہاں پہ رکیں گے آپ؟ مزید ہم رہنے کے لیے تیار ہے. خان صاحب 1 سال کے لیے بھی بولتے ہم یہاں بیٹھیں گے. کیوں؟ ماؤں نے بھیجا ہے، جاؤ بیٹا ٹر جاؤ. ایسے لیڈر کے لیے، ایسا لیڈر دوبارہ نہیں ملے گا آپ کے بچوں کو مستقبل کے لیے. میرے 2 بچے ہیں، میں شادی شدہ ہوں.
जैसा कि अभी सूबा सिंध के हालात बहुत ख़राब हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा, लोग लाइनों में लगे हुए हैं आटा लेने के लिए, आटा बहुत महंगा हो चुका है, हर तरफ देखा जाए तो वहाँ पे स्कूल जो हैं बने हुए लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। मैं खुद सूबा सिंध में जाके मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, सैलाब आए। और आपको क्या लगता है कि मैं आपको बताता हूँ, खान साहब की हुकूमत ने 1100 अरब का पैकेज दिया खान साहब ने। इन्होंने क्या क्या स्कूल बनाने थे, पूरा निज़ाम बनाना था, कराची को भी बनाना था, कराची को तो खंडर बना दिया है, वहाँ पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है। जो स्कूल बनाने थे इन्होंने स्कूल तो बनाए, तमीरी तो किए, लेकिन उन्होंने अपनी भैंसें बांध दी, भैंसें बांधी स्कूलों के अंदर, भैंस बांधी स्कूलों के अंदर भैंसें बांधी हुए। जिसे जो हमारे हलीम आदिल शेख साहब है उन्होंने खुद वहाँ मीडिया को लेके गए थे, स्कूलों के अंदर भैंसें बांधी, मास्टर जो है ना भैंसों को पढ़ा रहे, इंसानों को नहीं भैंसों को पढ़ा रहे। ये है सिंध का निज़ाम और ये है पीपल्स पार्टी का जगीरदारा निज़ाम। और ये खुद ही लाना भी यही जरदारी ने जो साजिश की और इसी वजह से की हम लोग। मरियम नवाज वापस आ चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि वो अभी इलेक्शन की तरफ जाएंगे? मरियम नवाज क्या जो सर्जरी करवा के आई है, ये सर्जरी करवा के आई है और आते हुए अवाम को खुशखबरी भी दे दी। क्या खुशखबरी दी? 35 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। और वो कह रही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ क्या महंगा वो आ रहे, वो आएंगे नहीं, वो भगोड़ा, वो लंदन में बैठ के उसने जो साजिश करी उसको कौन छोड़ेगी, उसको आने के काबिल रखेगी और आते हुए एयरपोर्ट पे उसको जूते पड़ेंगे, उसको डंडे मारेंगे। आप देख रहे हैं डंडा रखा हुआ है, ये अपने इसलिए साथ रखा है, गुल्लू बट्टू के लिए रखा है। हम खान के सिपाही हैं और अपने जमीन की हिफाजत करेंगे। जी सर्जरी की बात कर रहा हूँ। आते हुए उन्होंने जो पेट्रोल बढ़ाया, वो क्यों बढ़ाया? सर्जरी के जो करोड़ों रुपए लगा के आए हैं वहाँ पर, वही पैसे तो निकालना है ना आवाम से, इसलिए पेट्रोल का रेट बढ़ाया है। सर्जरी करवाई है, वही पैसे आवाम से वसूल करेंगे, वही आवाम से वसूल करेंगे, इसलिए तो सर्जरी करवा के आइए। मैं जाऊंगी तो आवाम को खुशखबरी दूंगी, सर्जरी करवा के आपके पैसों से, इसलिए आपको टैक्स लगा दिया। ठीक है। बिलावल जरदारी कहते हैं कि इमरान खान को व्हाइट हाउस ने नहीं बल्कि बिलावल जरदारी हाउस ने निकाला, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो आवाम जानती है किसने निकाला। ठीक है। ये लोग बस, मैं इसके मौजू की बात नहीं करना चाहता। ये बिलावल भुट्टो नहीं है, ये बिलावल जरदारी है। भुट्टो वो था जो शहीद हो गया, ये जरदारी है। कौन माँ का रुतबा लेके आता है? बाप से होते ना, कौम बाप से आती है, जरदारी कहलाई है, भुट्टो नहीं। शहबाज शरीफ कहता था कि मैं आसिफ जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा और आसिफ जरदारी कहता था मैं शहबाज शरीफ को सड़कों पे घसीटूंगा। क्या कहेंगे आप? एक दूसरे को इतना बुरा भला कहते थे। और जो नवाज शरीफ है, इन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें फेंकवाई थी, ठीक है, नंगे तस्वीरें। अब एक ही बैठ के, ठीक है, बैठ के मुशावरत करते हैं, पॉलिसी बनाई, खान साहब को हटाया, एक ही बैठ में थाली में बैठ के खाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और बिलावल दोनों गद्दार हैं। अच्छा, डीजी खान में सैलाब आया था, वहाँ पे काफी सारी तबाहकारियां हुई, इसके बारे में आप क्या करेंगे? वहाँ पे किसने ज्यादा सपोर्ट की थी सैलाब के दौरान? उसी सैलाब के हल्के से हूँ। मोहतरमा जरताज गुल ने हमें सपोर्ट किया और खान के जो सिपाही आए थे फैसलाबाद से, जन से आए, ये हुकूमत की तरफ से नहीं आए, खान की पार्टी के बहुत लोग आए और खान ने बहुत हमें सपोर्ट किया। और मोहतरमा जरताज गुल के हल्के से आप? जी, मोहतरमा जरताज गुल के हल्के से हूँ, उनके मैं साथ रहा हूँ और मैं जहाँ जहाँ था सैलाब जो जितना मकान गिर गए थे मैं उनके साथ में था, विजिट में रहा और उसी को मैं सपोर्ट करता हूँ। उससे पहले मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, मुशर्रफ दौर में 8 साल मैं उधर रहा हूँ। अच्छा। और खान के लिए उधर मैं खाने काबे में बैठ बैठ के दुआई मांगता था। अच्छा। जो हमारा खान आएगा तो हम उसको वोट देंगे और इनको हम जो है वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये जो है ना मुसलमान के काबिल ही नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है। हमारे माशरे के आके ये नसूर है, अल्लाह इनको बर्बाद करेगा, अल्लाह इनको तबाह करेगा। और हमारे बच्चों का इन्होंने रिज़्क़ छीना है और हमारी मिट्टी के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। हम मरने के लिए और जीने के लिए 8 माह में मैं बनी गाला में रहा और बगैर पैसे, बगैर लालच, हर चीज़ मैं अपने खाने से खा रहा हूँ। गरीब हूँ लेकिन अल्लाह मुझे रोटी दे रहा है। मेरे 3 बच्चे, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। अच्छा। ठीक है, अभी भी टैक्सी ड्राइवर है? जी बिल्कुल, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, एक मजदूर बंदा हूँ। मैं 8 महीने लेकिन बैठ गया, इस वजह से बैठ गया, मैं बाहर गया। हमारी इज्जत किसने आके बढ़ाई? इस खान साहब ने आके बढ़ाई। और पूरे पाकिस्तानी, खुदा की कसम, मैं उधर रहा हूँ। जैसे उधर जाते ना वीजे
पे, जैसे इधर कोई लड़की देता ना निकाह करके देता है, हमारा सऊदी के साथ ऐसे निकाह होता था, यकीन करो हमारे कोई उनके इशारे पे चल रहा है, अपनी मर्जी उधर नहीं कर सकता था। जिस दिन खान आया हमारी पहचान बनाई, हमारी जुर्रत बनाई और सब लोग उसको मानते थे और पाकिस्तानी को ऐसे सलूट करते थे। ये है इमरान खान जो है इंसाफ काट लाया। मैं गरीब बनता हूँ, यकीन करो मुझे पहले पता नहीं था। जिस टाइम ये आया मेरा भांजे का एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल में गए, उस राशन कार्ड से यानी हमारे भांजे की मुफ्त इलाज हुआ, घर का किराया दिया। और हमारे घर और गरीब क्या चाहता है? गरीब यही चीज चाहता है, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको महंगाई से कुछ नहीं है। जो इस बंदे में एहसास ना हो वो बंदा पाकिस्तान के काबिल है, जिसमें एहसास है, जिसमें नहीं है उसमें एहसास नहीं है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हमारा कैद जो भी आ रहा है उसको यही कुछ सिखा रहा है। अभी मुसलमान नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? मेरी अपील यही है और पूरे पाकिस्तान को, खुदा के लिए खुदारा ये जो लीडर आया है इसको मत गवाओ। अगर इसको गवा देंगे तो जिंदगी सारी पछताएंगे और इधर अफरा तफरी हो जाएगी, कत्लो गारी हो जाएगी, भूख से बंदे लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। अभी यही अंजाम आने वाला है। ये लोग अभी तक नहीं समझ रहे, जो उनको ये पता चलेगा ये मुनाफिक हैं और जो है ना पाकिस्तान के गद्दार हैं। हमारे बारे इसने कुछ नहीं सोचा। मैं सऊदी अरब में था, इसकी मिल है नवाज शरीफ की, मैं उधर टैक्सी चलाता था। जब मैं उधर गया तो एक इंडियन को मैं सवारी लेके मैं छोड़ने गया, बोलता है ये देख रहे हो? मैं कि हाँ। ये क्या लिखा हो? मैं तो अनपढ़ हूँ। बोलता है इधर पाकिस्तानी ममनू, टोटल इंडिया काम कर रहा है। किसकी फैक्ट्री? नवाज शरीफ की स्टील मिल जद्दा में है। बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ, और किसी से पूछो उधर लिखा हुआ है पाकिस्तानी ममनू। जो हमारा मुल्क का लीडर होगा तो वो बोलेगा ममनू पाकिस्तानी हमारा वोट क्यों लेता है? जब इनका जो कुछ हो जाए ये लंदन भागते हैं। हम ये है इमरान खान जो गोलियां डाल के इधर आए, इस वजह से हम भी उसके लिए खड़े हैं। हम आंधी से, हम तूफान से हम लड़ेंगे और गुल्लू पट्टों से ये डंडा देख रहे हैं। खुदा की कसम हमारा खून भी उसके लिए हाजिर है। और जो है अपने मुल्क के लिए और अपने दीन के लिए और अपने मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान को बचाना चाहिए। और सबको मैं पैगाम दे रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते, नबी के वास्ते, जो कलमा पढ़ते हो, सच्चे मुसलमान हो, तुम हम भाई हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सब भाई हैं, मुसलमान भाई है। कोई है वो सिंधी नहीं है, पंजाबी नहीं है, वो बलोची नहीं है, सब हम भाई हैं। और पाकिस्तान को यही वक्त है बचाने का, और पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए निकलो। खान साहब के लिए क्या मोहब्बत भरा एक तोहफा देंगे आप? मैं खान साहब के लिए ये मोहब्बत है, जो मैं खान का सिपाही हूँ और खान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं 8 माह उधर रहा हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ जो सच्चा मुसलमान है, और इस वजह से ये लोगों को आके जगाया। और मैं मुल्तान तक, डीजी खान से मुल्तान तक पैदल चला था, 3 दिन लगाए थे। इसलिए हर घर में पैगाम दिया, जो निकलो, अभी जो वक्त है यही वक्त है, मुसलमानों कुछ जागो। 30 साल से हमें लूट रहे हैं, मक्खी की तरह हमारा खून पी रहे हैं, हमारे बच्चों का पी रहे हैं। आज वो हाल है, यकीन करो एक टाइम का हमारे पास आटा नहीं है, हम क्या खाएंगे? मुझे बता, किसी को डकैतियां करेंगे? ये हुकूमत है तो ऊपर से बोलते थी महंगाई है, इमरान खान बहुत महंगाई करी है, और मीडिया वाले दुकानों में पहुंच जाते हैं। आज वो किधर है मीडिया जो दुकानों में जाते थे? आज 35 रुपए एक बार कभी जिंदगी में सुना है जो बड़ा हो? लेकिन इन लोगों ने हमें एहसास इनको नहीं है। ये ऐसे करते हैं ना जैसे जानवर को टीका लगाते हैं, ये ऐसे बंदे को टीका लगा रहे हैं। और खुदा के लिए मेरी अपील है, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो भैया आप तो जाग जाओ, अल्लाह के वास्ते, नबी के वास्ते। मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन मेरी बात समझो, इस भाई को भी शेयर करो, और जो है ना, और हमें जो है ना शेयर करो, और सब लोगों को बताओ, एक बंदा घर का निकले। देखिए, शेर वो है जो 5-4 गोलियां खा के भी घर पे बैठा हुआ है। वो तो गीदड़ हैं, मुल्क छोड़ के भाग के लंदन बैठे हुए हैं। वो मुल्क के खैर खा नहीं है, वो मुल्क के दुश्मन है जो सौदा कर रहे हैं वहाँ बैठ के। शेर वो है, मुल्क का वफादार वो है जो घर पे बैठा हुआ है और घर में बैठ के पाकिस्तानी को हौसला दे रहा है। पाकिस्तान में एक अच्छा दिन आएगा और इंशाल्लाह हमें ऐसा लीडर खोना नहीं चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों को मेरा मैसेज है,
खुदा के लिए एक पेज पे खड़े हो जाओ और इमरान खान का साथ दो। मुल्क को बचा सकता है तो इमरान खान बचा सकता है। ये बाकी चोर लुटेरे डाकू हैं जो 13 जमातें मिलके ये मुल्क को खोखला कर रही हैं। ये कहाँ गई? पहले महंगाई मार्च और फजलो डीजल लेके आता था, महंगाई मार्च, ये मार्च, वो मार्च, ये तमाम मार्च निकल पड़ते थे। आज इन्होंने कितनी महंगाई कर दी, दुगुना कर दी, डबल कर दी। आज अब फिर भी खामोश बैठे वो, निकलो, यही आवाज़ है, यही आवाज़। खान साहब के लिए क्या मैसेज देंगे आप? खान साहब के लिए मेरा ये मैसेज है, खान साहब हम आपके साथ हैं, हमारे बच्चे भी कुर्बान आपके लिए, हमारा सब कुछ कुर्बान, हम अपने घर भी बेचना पड़े तब भी हम आपके साथ खड़े हुए और इंशाल्लाह भूखा प्यासा रह लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे, लेकिन आपके साथ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे खान साहब, मरेंगे जिएंगे आपके साथ और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को बचाएंगे, अपने बच्चों को मुस्तकबिल बचाएंगे। खान साहब आपने हमें कहते थे आप घबराना नहीं है, हम आपको कहते हैं खान साहब आपने भी नहीं घबराना, हम आपके साथ हैं। नौजवान, मेरा बच्चा है 3 साल का, मेरा खान साहब मेरा 3 साल का बच्चा, वो भी आपके लिए दुआ करता है, अल्लाह पाक मेरे खान को लंबी उम्र दे। मेरे मुझसे पूछता है जब मैं कॉल करता हूँ मेरा चाचू इमरान खान कैसा है, तो खान साहब मेरे बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, तो हमारा जज्बा कितना होगा, हम आपके साथ हैं। जिए इमरान, जिए पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पीटीआई के कारकुन, पीटीआई के जो टाइगर हैं, किस जोश और जज्बे से अपना जज्बा बयान कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह लम्हा ब लम्हा आपको खबर देते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।